हेलो स्टूडेंट। आज से हम इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है उसके 3 सेक्शन मैंने आपको बताए थे। वन दैट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल एंड थर्ड दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आज का जो लेक्चर है वो सबसे पहले जो टाइटल है उसको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। ओके, टाइटल से आपको पता चल जाता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसका मीनिंग होता है सिस्टम मस्ट बी कंटेन्स आयंस। सबसे पहले पता होना चाहिए। और नॉर्मली हम आयन किस सिस्टम में पाते हैं? तो जैसे आप NaCl सॉलिड है, उसको आप पानी में डाल दो, दैट इज सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। सो नॉर्मली आयंस प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम ये सिस्टम जो लेंगे उसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट होगा नॉर्मली। मतलब हम जो बात करेंगे वो एक्वस सॉल्यूशन के बारे में होगी, एक्वस सॉल्यूशन। सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। ओके, दूसरी बात, केमिस्ट्री में नॉर्मली स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा होता है कि चलो इसको पानी में डाल दो और डिसॉल्व हो गया। अब केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं जो सब्सटेंस है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। द फर्स्ट कैटेगरी इन विच इफ यू डिसॉल्व सब्सटेंस देन इट गिव्स फ्री आयंस। मतलब वो फ्री आयन देता है लाइक NaCl, एंड सम सब्सटेंस just dissolve in water does not produce ions। अब बोलोगे सर ऐसे भी सब्सटेंस है जो डिसॉल्व भी होते हैं और आयन भी नहीं देते? यस ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले सब्सटेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ओके, द फर्स्ट कैटेगरी दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। द फर्स्ट कैटेगरी दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। ओके, so all of you write down the definition of electrolyte. Electrolyte जो word है that is chemical name and applicable for particulars category. Okay, so what is the meaning of electrolyte? So example के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। For example we have NaCl. NaCl किस फॉर्म में होता है? That is in solid form which made up of Na plus and Cl minus and both ion bonded together and that is ionic bond. We all know Na plus surrounded by Cl minus surrounded by Na plus, and between these two ionic bonds are present and which is strong bond. Okay, now these two ions are not free, so we have two options for that. The first one is we have to supply heat. Okay, so what happens if you supply heat? Then ionic bond will break and both ions will separate, Na plus and Cl minus. This state is known as molten state. This state is known as molten state. Molten state means liquid state in which we have free ions. Is it clear? Okay, now we have another option. We have to dissolve this NaCl solid again in water, and this is our daily routine exercise. You have to take water and just dissolve salt. So we all know NaCl completely dissolve in water. Okay, so this phenomena is known as hydration. I already discussed in thermodynamics. Na plus surrounded by molecules of water, Cl minus surrounded by molecules of water, and this phenomena is known as hydration, and this is a aqueous state. Now see, we have two state, molten state and aqueous state. In both state NaCl produced free ions. यहाँ भी free है, यहाँ भी free है. Clear? Such type of substance is known as electrolyte. तो सबसे पहले what is the meaning of electrolyte ये आपको पता होना चाहिए. Okay, so if you want to write definition of electrolyte, then you can write a substance either in molten state or in aqueous state gives free ions is known as electrolyte. Normally acid, example में आप लिख सकते हो most of the acid, then base and salt etc. are included in this category. Okay, आप बोलोगे सर सारे सब्सटेंस ऐसे ही होते हैं ना? ऐसा नहीं है.
ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जब डेली लाइफ में आप यूज करते हो, पानी में डिजोल्व भी हो जाएंगे लेकिन वो आपको आयंस नहीं देंगे। अब बोलोगे सर ऐसे भी सब्सटेंस है? यस ऑफ कोर्स, एंड सच कैटेगरी इज नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, opposite to electrolyte, non-electrolyte. So what is the meaning of non-electrolyte? Just opposite to electrolyte. A substance either in molten state or in aqueous state does not produce free ions are known as non-electrolyte. And we have some examples also. For example, glucose. Glucose की फॉर्मूला है C6H12O6, सबको पता है। सुक्रोज, सुगर आपके घर में है, C12H22O11, यूरिया NH2CO NH2 एटसेट्रा। ये जितने भी सब्सटेंस अभी मैंने आपके सामने रखे हैं, इफ यू डिसॉल्व इन वाटर देन जस्ट डिसॉल्व। यहां जो बॉन्डिंग है बिटवीन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड डज नॉट ब्रेक इन वाटर, जस्ट फिजिकल बॉन्ड विल ब्रेक, physical bond presenting between two molecules. So if you dissolve glucose matter in water, and we know matter made up of molecules, so many molecules just separate, because molecule के बीच में जो bonding है, that is a van der Waals, और वो जो van der Waals है वो यहाँ पे break होगा, and due to breaking the van der Waals all molecules will separate, just solution, clear? But we don't have ions. So such type of substance is known as non-electrolyte. ये तीन एग्जांपल मैंने आपके सामने इसीलिए रखे क्योंकि 12th में ये तीनों जो सब्सटेंस है जिसको हम पानी में डालेंगे, जो सॉल्यूशन बनाने का है, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। 12th में पूरा डिफरेंट हो जाएगा। ये कैटेगरी को एक नया नाम देंगे आइडियल सॉल्यूशन, और इसको बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन because we are interested in ion and ions present in non-ideal solution. Okay? तो ये सब्सटेंस आगे जाके नॉन आइडियल में कन्वर्ट होने वाला है, वो 12th की बात है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन आयंस, क्लियर? तो अब मुझे बताओ पार्ट 3 में हम जो पानी में सब्सटेंस डालने वाले हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होगा या नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्लियर? तो इसको अभी हम स्किप करने वाले हैं, इसको हम आगे नहीं ले जाएंगे। दैट इज यूरिया, NH2CO NH2 यूरिया नाम सुना है आपने, उसको हम पानी में नहीं डालेंगे, क्लियर? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टूडेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, वन जो स्कूल में जाते हैं और दूसरे जो स्कूल में जाते ही नहीं। अब जो स्कूल में जाएंगे नहीं तो एग्जाम कहां से देंगे, मार्क्स कहां से आएंगे? तो जो स्कूल में जाते ही नहीं है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और जो जाते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट है, क्लियर? ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो जो स्कूल में जाते हैं उसके भी दो पार्ट है। ओके, तो अब हम आगे किसको ले जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट को याद रखना, इसको ले, क्लियर? अब स्टूडेंट को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करने जा रहा हूं। एक कैटेगरी ऐसी है जो 100 मार्क्स के एग्जाम दे रहे हैं और 100 मार्क्स के एग्जाम में उनको 100 मार्क्स से आ रहे हैं, और एक कैटेगरी ऐसी है जो 100 में से 10 या 20 मार्क्स लेके आ रहे हैं, और ऐसा भी होता है, हमें पता है। जो 100 में से 100 लाते हैं वो इंटेलिजेंट है, और जो 10 मार्क्स आते हैं वो वीक स्टूडेंट है। तो यहां भी ऐसा ही होने वाला है। सो अगेन इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड इनटू two categories. Okay, the first one that is strong electrolyte. First one जो है that is strong electrolyte. Okay, अब आप बोलोगे तो strong electrolyte means what? सर वो hard है? No. Okay, तो strong electrolyte के बारे में you have to remember the first line that is very very important. 100% ionization. 100% ionization or dissociation. 100% ionization or dissociation. These two words are very very important. इसके बीच में भी एक minor difference है, वो बाद में मैं बताऊंगा, अभी नहीं. You have to just remember now. Strong electrolyte undergoes 100% dissociation. आप बोलोगे 100% का मीनिंग क्या है, तो एग्जांपल के साथ मैं आपको बता रहा हूं. फॉर एग्जांपल HCl. ओके, HCl की बोतल है। अब HCl की बोतल में सारे मॉलिक्यूल किसके होंगे, HCl के होंगे। अब HCl का फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपको पता है,
HCl में हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, क्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा है तो वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव होता है और ये बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के नजदीक होते हैं। ये सब हमें पता है। अब मान लो कि क्लोरीन की जो बॉटल है उसमें क्लोरीन को पानी में डालने वाले हैं, तो पानी में डालोगे तो क्या होगा वो भी पता है, H+ और Cl- में वो कन्वर्ट हो जाएगा। दैट फिनोमेना इज आयोनाइजेशन। ये सब डिटेल में बताता हूं मैं आपको। ओके, पहले हम जो पार्ट 2 पढ़े हैं उस हिसाब से मैं आपको टेबल बना रहा हूं। ओके, सो इफ यू डिसॉल्व HCl in water then HCl undergoes H+ and Cl-. now see the proportion 1:1:1. ओके, टेबल हम ऐसे बनाते थे, यहां पे हम लिखते थे इनिशियल और यहां पे हम लिखते थे फाइनल। ओके, नाउ व्हाट इज द इनिशियल? तो इनिशियल का मीनिंग होता है HCl की जो बॉटल है उसमें आपके पास HCl के कितने मोल्स है। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 मोल्स है इनिशियली, अभी आपने पानी में उसको डिसॉल्व नहीं किया है। ओके, सो व्हाट अबाउट H+? दैट इज 0 मोल, Cl- 0 मोल। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट हैपन इफ यू डिसॉल्व इन HCl in water, all molecules undergoes ionization. It means HCl की 100 मोल्स है तो 100 के 100 डिसोसिएट हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे और ये आयोनाइजेशन यहां से होता है और यहां से जब होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन Cl के पास आ जाएंगे, दैट इज Cl- और हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, H+। ओके, जब आपने 1 घंटे बाद स्टडी किया, सॉल्यूशन को स्टडी किया तो पता चला कि जितने मोल्स आपने डिसॉल्व किए थे ऑल कन्वर्ट इनटू H+ and Cl-. नाउ सी द प्रोपोर्शन 1:1, तो ये आपको कितना मिलेगा 100 और ये आपको कितना मिलेगा 100। अब 100 में से 100 गए तो यहाँ पे 0, मतलब जब एनालिसिस किया आपने सॉल्यूशन का तो एक भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं था जिसमें HCl अभी भी है, बॉन्ड है ही नहीं, बॉन्ड ब्रेक हो गया। जितने भी मॉलिक्यूल्स थे सब में बॉन्ड ब्रेक हो गया। एंड सच टाइप ऑफ फिनोमेना occur in solution of strong electrolyte, therefore it is known as 100% ionization or dissociation. Clear? और ये पिक्चर आपके सामने आएगा पर्टिकुलर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और यहाँ पे एक पैरामीटर है दैट इज अल्फा। अल्फा का मीनिंग होता है आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री, वर्ड याद रखना, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन, दोनों वर्ड आप लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1। आप बोलोगे सर अल्फा 1 का मीनिंग क्या होता है, तो एक सिंपल फॉर्म में मैं अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अल्फा की फॉर्मूला है अल्फा दैट इज लाइक फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला क्या है, मोल अपॉन टोटल मोल। तो अल्फा की फॉर्मूला क्या है, या नीचे आपको लिखना है टोटल मोल्स, टोटल मोल्स टेकन, मतलब आपने पानी में कितने मोल डिसॉल्व किए 100, तो नीचे 100 आएगा। क्लियर? आउट ऑफ 100 हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आयोनाइज्ड, वो न्यूमरेटर में लिखना है। तो यहां पे आपको लिखना होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आयोनाइज्ड और डिसोसिएटेड। पूरा 12 खत्म हो जाता है, फिर भी अल्फा का मीनिंग ही पता नहीं है। सिंपल मीनिंग के बात बता रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला कहीं है नहीं। ओके, अब मेरे आपके सामने एग्जांपल है, मुझे बताओ आपने कितने मोल डिसॉल्व किए 100, तो नीचे 100 लिखो। क्या जब आपको एग्जाम देते हो तो आपके टीचर जो मार्क्स आपको देते हैं तो कैसे देते हैं, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, तो टोटल नीचे लिखना है और ऑब्टेन ऊपर लिखना है। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स आयोनाइज्ड आपने 100 लिए थे तो 100 में से कितने प्रोडक्ट में गए 100, सिंपल, तो यहां भी 100 ही आएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 1। और कोई स्टूडेंट जब 100 में से 100 मार्क्स लेके आता है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सर इसका 100% आ गया। तो यहां ऐसा ही हुआ, देखो परसेंटेज के फॉर्म में आप जाओगे तो 100, परसेंटेज बोले तो 100, अल्फा बोले तो 1। अल्फा जो होता है, अल्फा इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इक्वल टू परसेंटेज। हम जब एग्जाम देते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो परसेंटेज के बेस पे होता है, अल्फा के बेस पे नहीं। फिर भी आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो पापा मेरा अल्फा 1 आया इस बार, पापा खुश हो जाएंगे, लेकिन पहले पापा को अल्फा क्या है बताना पड़ेगा।
क्योंकि उनको तो माइंड में इतना ही सेट है, रिजल्ट परसेंटेज में आते हैं। आप बोलो कि मेरा अल्फा 1 आए तो पापा समझे कि 1% है। अल्फा 1 मतलब 1% नहीं, 100%। इज इट क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, यहां पे आप देखो रिवर्सिबल रिएक्शन होता ही नहीं है। हम जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने इक्विलिब्रियम, तो मैंने फर्स्ट लाइन आपको बताई थी इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व्ड इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये तो रिवर्सिबल है ही नहीं, दैट इज 100% इरिवर्सिबल। ये दोनों वापस कंबाइन होते ही नहीं है। तो इसका मीनिंग हुआ नो इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व्ड इन दिस सॉल्यूशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो एक वर्ड यहां पे मैं लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नो इक्विलिब्रियम, नो इक्विलिब्रियम observed in solution of strong electrolyte। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन होता है उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन होती ही नहीं है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन ही नहीं है, सो देयर इज नो मीनिंग ऑफ के, देयर इज नो मीनिंग ऑफ के मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्मूला है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सिंपल फॉर्मूला, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहां आपके पास प्रोडक्ट है एट इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट है नहीं। इसका मीनिंग हुआ कि ये जो हम चैप्टर आगे पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बेस पे नहीं होगा। किसके बेस पे होगा? स्ट्रॉन्ग का अपोजिट वीक। क्लियर? तो मैं वीक के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लेते हैं। वो एसिड का ही मैं ले रहा हूं, आगे आपको ऑर्गेनिक में पूरा एसिड पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। तो मान लो कि यहाँ पे आयोनाइजेशन कितना होता है पता है? 2 to 3% आयोनाइजेशन, जस्ट 2 to 3% आयोनाइजेशन। तो 100 मार्क्स की कोई बच्चा एग्जाम देता है, उसके 2 मार्क्स आता है, तो टीचर क्या लिख के दे? 2/100, दैट इज अ वीक स्टूडेंट। 2 मार्क्स ही आए, मतलब 98 मार्क्स आए ही नहीं। तो यहां भी ऐसा होने वाला है कुछ, देखो, ठीक है? एग्जांपल के साथ में आपको बता रहा हूं 2 to 3% आयोनाइजेशन। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3COOH है, एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड की फॉर्मूला CH3C O, यहां पे OH होता है। अब एसिटिक एसिड के आपके पास 100 मोल्स है, उसको जब आप पानी में डालोगे तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होने वाला है। ओके, तो H प्लस और A माइनस हो जाएगा। सो वी हैव CH3COO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस। proportion 1:1:1। टेबल फर्स्ट वन इज इनिशियल, फॉर एग्जांपल 100, ये दोनों 0:0। क्लियर? ओके, चलो अब देखो अब क्या हो रहा है। अब जैसे आपने 100 पानी में डिसॉल्व किए तो इनिशियली मान लो कि सब ब्रेक हो गए, लेकिन वापस ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं। फिर से आपको मिलेगा फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, और 1-2 घंटे बाद इसमें कंडीशन आ जाएगी एंड दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड दैट इज फाइनल। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में पता चला कि 100 में से प्रोडक्ट में कितने गए? ओनली 2 मोल्स। जैसे यहाँ पे कितने गए थे? 100 में से 100, यहाँ पे 100 में से 2 मोल्स ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आपको CH3COO माइनस के 2 मोल्स मिलेंगे, इसके भी आपको 2 मोल्स मिलेंगे, और ये 100 में से 2 माइनस हो जाएंगे, मतलब 98 मोल्स मिलेंगे, 98 मोल्स। तो मुझे बताओ इसका अल्फा क्या हुआ? तो आपने कितने मोल डिसॉल्व किए थे? 100, और 100 में से कितने मोल डिसोसिएट हुए? जस्ट 2। तो अल्फा कितना हुआ? 0.02, and 0.02 means what? Alpha less than 1. Is it clear? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है वो लेस देन 1 होता है, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब ये वापस दोनों कंबाइन हो जाता है, और इसमें आप इक्विलिब्रियम को स्टडी कर सकते हो। इट मींस इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व्ड इन सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी यहां पे आएगा क्योंकि इसमें प्रोडक्ट भी है और रिएक्टेंट भी है। इक्विलिब्रियम आपको स्टडी करना है तो प्रोडक्ट भी चाहिए, रिएक्टेंट भी चाहिए।
ठीक है। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको वीक में मिलेगा, स्ट्रॉन्ग में नहीं मिलेगा। इसका मीनिंग हो गया कि आगे आपको जो पार्ट 3 पढ़ना है उसमें जो सॉल्यूशन आएगा वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आएगा, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग का नहीं वीक का होगा। ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। पूरा पार्ट 3 पढ़ लेते लेकिन पता ही नहीं हम किसका सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। अब मान लो कि HCl है और एक एसिटिक एसिड है, तो HCl को आगे जाके हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड। अब मुझे बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इसमें होगा या इसमें होगा? ऑब्वियसली इसमें होगा। फिर भी पूरा 12 खत्म हो जाता है 99% के साथ, और किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया इंटरव्यू में कि चलो HCl का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, सर पता नहीं, टेक्स्ट बुक में दिया नहीं था, तो वहां पे आपके 99% जीरो हो जाएंगे। लेकिन इतना क्लियर होना चाहिए कि HCl है, NaOH है, NaCl है, सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन होती ही नहीं है, क्योंकि उनका अल्फा 1 है, और जिसका अल्फा 1 होता है उसमें रिवर्सिबल प्रोसेस होती ही नहीं है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस ही नहीं है तो वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन ही नहीं है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहां से आएगा? थोड़ा तो दिमाग लगाओ, ठीक है। तो ये फंडामेंटल नॉलेज है, इसको फंडामेंटल नॉलेज बोलते हैं, और ये टॉपिक 11th में नहीं और 12th में भी पढ़ेंगे। 12th में भी हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने और करके लिखा है आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन, मैं बताऊंगा आपको इन दोनों में भी डिफरेंस है। डिफरेंस आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन में है, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं। और ये टॉपिक में हम 1 by 1 पहले पानी में एसिड डालेंगे, पानी में बेस डालेंगे, पानी में सॉल्ट डालेंगे, लेकिन कौन सा एसिड, कौन सा बेस, कौन सा सॉल्ट, वीक, नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था उसका मेन टारगेट था ये जो टाइटल है उसको इंट्रोड्यूस करवाना, तो मैंने करवा दिया। तो फिर से एक बार बता रहा हूं, सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रोलाइट। Now electrolyte further divide into two category, strong and weak, and these are the characteristics of strong electrolyte and weak electrolyte। तो क्लियर होना चाहिए, अल्फा क्या है, परसेंटेज क्या है, टेबल क्या है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आगे ये पार्ट भी आपके लिए इजी होने वाला है, लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन के बारे में, और एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे। एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, उसकी पुरानी डेफिनेशन है, नई डेफिनेशन है। 10th में थोड़ा आपने शायद पढ़ा होगा। एसिड बेस के 3 कॉन्सेप्ट है, आर्हेनियस ने भी एसिड बेस को रिप्रेजेंट किया था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने भी किया है, और लुइस ने भी किया है, ठीक है। तो कल हम वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मुझे पार्ट 3 को इंट्रोड्यूस करवाना था, तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।